Okay. So in the last class, we have completed question number 1, right, of exercise 3.3. Today we have to start question number 2. Am I right? Okay. Okay, I hope you have revised the last lecture properly. You got the time also. I'm starting very late. You would have revised the last lecture of question number 1 of exercise 3.3. So now we will continue with question number 2, first question. Okay. So I think there are many questions, 12 questions in this. Okay, no problem. Let us start with this question now. Integration of e raised to 2x into sine 3x. Are you getting some background noise, student? No. Okay. Fine. So you can tell me what to do with this question, students. Tell me first. E raised to 2x into sine 3x. Yes. So you can see multiplication है. So UV लगेगा. But again, e raised to 2x is exponential. Sine is trigonometric. So exponential comes last. So I'll have to change it. I'll have to change the order. So sine 3x into e raised to 2x dx. Okay. Now let us apply UV rule here. So it will be sine 3x common, integration of e raised to 2x minus integration of e raised to 2x dx into derivative of sine 3x. I think अभी तक तो हमको UV rule याद हो गया होगा, so there is no problem in applying the UV rule. Now solving it further, e raised to 2x का integration e raised to 2x divided by coefficient of x, integration of this is e raised to 2x divided by 2 into sin 3x का derivative, तो वो होगा cos 3x into 3x का derivative 3. I hope everybody understood this step. Sin का derivative cos होता है. Okay. Now you can see in the right hand side, the second term is going to be again u into v, right? We started with e raised to 2x into sine 3x. Now students, you must remember that whenever you have e raised to x and sine ना, तो आपको वापस से u ही आएगा. फिर उसको जब करोगे ना तो वापस से शायद आपको ये वाला ही टर्म मिल जाए.
ऐसा एक क्वेश्चन हमने किया था शायद प्रैक्टिस में, राइट? सो क्योंकि देखो ई रेस टू एक्स कभी भी वो ई रेस टू एक्स कुछ होने वाला नहीं है, और कॉस एक्स हमेशा या तो कॉस का साइन होगा, साइन का कॉस होगा, यानी यू इंटू भी हमेशा ही रहेगा, राइट? सो इसमें क्या करेंगे, 3/2 को हम इंटीग्रेशन के बाहर ले लेते, सो इट विल बी e raised to 2x by 2 sin 3x minus 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस को पहले लिखा एंड e raised to 2x को बाद में, ठीक है? अब इसके अंदर u by v वापस से लगाएंगे, बाकी सारे टर्म्स को एज इट इज रखने देंगे। चलो लेट अस अप्लाई। सो cos 3x कॉमन, मैं थोड़ा डायरेक्ट करूं बच्चों। अभी नेक्स्ट होता है इंटीग्रेशन e raised to 2x, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, दैट इज e raised to 2x by 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, फिर इंटीग्रेशन ऑफ e raised to 2x, दैट इज e raised to 2x by 2 into derivative of cos 3x. So derivative of cos is minus sin 3x into 3x का डेरिवेटिव 3 dx, ये आपका हो गया यूवी सेकेंड टर्म में, ठीक है? अभी इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं। e raised to 2x by 2 into sin 3x minus, we can multiply this 3/2 inside, तो पहले टर्म में ऑलरेडी अपॉन 2 है, तो ये हो जाएगा 3/4 cos 3x into e raised to 2x माइनस, बट ये माइनस और ये माइनस बिकम्स प्लस, एंड यहां से भी एक 3/2 बाहर आ रहा है, तो 3/2 इंटू 3/2, ये तो 9/4 हो गए। एंड सी साइन का ध्यान से देखो, माइनस माइनस और ये भी एक माइनस है ना यहाँ पर, so I think minus 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 will again become minus, yes, and here what will be left, integration of e raised to 2x into sin 3x। सबको समझ में आया बच्चों? And now you can realize that this e raised to 2x sin 3x is nothing but the question, isn't it? यही तो क्वेश्चन था ना, e raised to 2x और sin 3x, so we can put I in place of this, so ये ऑलरेडी हम I सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है? So therefore I will be equal to, इन दोनों में अगर कुछ कॉमन लेना है तो हम कॉमन ले सकते हैं, राइट? So I can take, I think, e raised to 2x upon 2 common, correct? I will be left with sin 3x minus 3/2, क्योंकि अपॉन 2 कॉमन ले लिया, 3/2 cos 3x minus 9/4 I, this minus 9/4 I will go this side, it will become I plus 9/4 मतलब 9I/4 equal to, this is as it is, cross multiply 4I plus 9I, 13I/4, this is as it is, okay? Now 13/4 को हम उस साइड भेजेंगे क्योंकि हमको तो I फाइंड करना है,
तो वो 4/13 हो जाएगा, राइट। 4 ऊपर चला जाएगा, नीचे 13 आ जाएगा, और बाकी सब एज इट इज। Now this is 2 ones are 2 twos are, so it will be I equal to 2 raised to 2x by 13 sin 3x, sorry, 2n minus 3 by 2 cos 3x. So this is your final answer. हाँ, ज्यादा से ज्यादा इस 2 को अंदर ले सकते हैं, क्योंकि ये अपॉन 2 कैंसिल हो जाएगा. So you can little bit simplify like this. e raised to 2x by 13, 2 को अंदर दिया तो 2 sin 3x हो जाएगा, और इधर 2 को लेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 cos 3x हो जाएगा. यस. Okay, so I hope everyone have understood this question. Correct? हाँ, प्लस सी हम इतना भूल गए, तो जहां पर इंटीग्रेशन होती है वहां पर से हमको प्लस सी लिखना जरूरी है. So please complete this. Already आप लोग ने लिख लिया होगा. So if something is left, you can just write that. Come on fast. So lengthy है but easy है. अगर आपको फॉर्मूला यू भी मालूम है, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन मालूम है, तो बहुत easy है. So already 2 students have message me done. Other students, please message me if you have already written along with me. Good. So maximum everybody have already written this. Okay. Now do one thing. Try the second problem by your own. Okay. Second problem by your own. It's I equal to integration of e raised to minus x into cos 2x. Yes, I'm giving you 2-3 minutes to solve this problem. So start doing it.
Yes, I hope you all are getting it. So now I will also start solving this. First, I'll have to arrange the term cos. I'll have to bring it first, and then e raised to minus x. I'll be little fast बच्चों. UV रूल डायरेक्ट अप्लाई कर रहा हूँ. cos 2x कॉमन लिया होगा. e raised to minus x का इंटीग्रेशन e raised to minus x upon minus 1 minus integration of e raised to minus x upon minus 1 into cos 2x का डेरिवेटिव minus sin 2x into 2. Okay. Now further solving this is going to be minus e raised to minus x cos 2x. Now here this minus, and this minus. The minus, minus will remain minus. 2 can come out. Then I will left with sine 2x and e raised to minus x. Two terms. Sine 2x, e raised to minus x. Here again I apply the UV rule. So 2 keeping outside. Sine 2x common. E raised to minus x का integration e raised to minus x upon minus 1 minus integration of e raised to minus x upon minus 1 into derivative of sine is cos 2x into 2. Correct? Now let us multiply minus 2 inside. So पहले term में minus plus plus 2 times e raised to minus x into sin 2x बचेगा. So minus 3 minus, so it will remain minus. यहाँ पर भी 2 कांस्टेंट है वो बाहर ले गया. 2 2 सा 4 हो गया और अंदर बचेगा e raised to minus x into cos 2x dx plus c. So I think this is I, so I can substitute I here. So therefore I is equal to, यहाँ से मैं maximum e raised to minus x, तो ये minus x है, गलती से मैं x लिखा. e raised to minus x मैं कॉमन ले सकता हूँ. करेक्ट. Are you all getting the same answer? ऐसा ही आपने सॉल्व किया. अभी तक तो आपका आंसर आ जाना चाहिए. बस माइनस प्लस का ध्यान दो कि आप गड़बड़ में हो या मैंने कहीं ना किया हो. So this will be minus e raised to minus x. एक बाद में कॉमन लेता हूँ, पहले ये सबको ट्रांसफर करता हूँ. This is minus 4i and minus 4i will go that side. So directly it becomes 5i. Correct, bachcho? And now I can take e raised to minus x common and 5 I can divide. So I equal to e raised to minus x upon 5. Here I will be left with minus cos 2x plus 2 sin 2x plus c. Please check whether you are getting the same answer.
Those who have solved, please write done in the chat box. Okay. So maximum of you have done it. Next question, question number 3. Integration of sine of log x. Now this question, if you can see, uh, there's only one term, right? Yes. So यूवी का तो क्वेश्चन नहीं होता अभी फिलहाल, बट फिर सिंगल टर्म का इंटीग्रेशन करेंगे कैसे? कैन वी अप्लाई साइन का फॉर्मूला? कैन वी अप्लाई साइन का फॉर्मूला, साइन एक्स का इंटीग्रेशन? No, because it is sine of log x. It's not algebraic. It's logarithmic function inside the sine. So what to do now? Because अभी तो न तो log भी लगा सकते हैं न तो sin कर सकते हैं. ठीक, तो अभी हम देख रहे हैं कि कंपोजिट फंक्शन है, साइन के अंदर log x है ना, तो ये वाले टाइप के क्वेश्चंस आप याद रखें. What do? We go for substitution and we put log x के जगह t. अभी we all know log x is t, but log का बेस e होता है, तो अगर मैं log को कैंसिल आउट किया तो इट विल बी x equal to e raised to t. ठीक है, and now I differentiate. So if I differentiate with respect to x, I will get dx equal to e raised to t dt. So now with this all substitution, my I will become what? C. log x की जगह t पुट किया है तो ये sin t हो गया, and dx की जगह e raised to t dt हो गया. Hello. So don't you think this question becomes the same as that of the previous question? Right? u भी करेंगे तो cos into e raised to t आएगा, फिर वापस u भी करेंगे तो वापस से sin into e raised to t आ जाएगा, फिर वो i में कन्वर्ट हो जाएगा और वो सॉल्व हो जाएगा. Yes. So I think this you can manage at home. Correct? As a homework you can do this. बाद में t जो आंसर आएगा उसको बैक सब्स्टिट्यूट कर देना, t की जगह log x. Okay. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ट नोट डाउन द हिंट इफ यू वांट. ऐसे तो बहुत सिंपल है. नाउ फोर्थ वन, I is equal to integration of root of 5x square plus 3. Now tell me students, नॉर्मली रूट होता है तो हम रेज टू हाफ लिखते हैं और एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला लगाते हैं. क्या मैं इसके अंदर एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला लगा सकता हूँ बच्चों? Yes. The answer is yes or no. Students reply. Yes. No is the answer. We cannot do because it is not a linear equation. It becomes a quadratic equation, right? तो कभी भी अगर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर अगर आ गया ना बच्चों, ठीक है,
देखो याद करो, 1 अपॉन होता तो हम 1/√, वाला फॉर्मूला लगाते ना, याद आ रहा है? तो हमारे पास एक रूट वाला भी तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, रूट ऑफ x² प्लस ए स्क्वायर, रूट ऑफ x² माइनस ए स्क्वायर, रूट ऑफ a² माइनस x²। यस। हाँ, तो ऐसा ही हम कुछ अप्लाई करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले हम क्या करते थे, याद करो। हाँ, चलो, रुचि ने बोला है कि 5 को बाहर लो। क्यों लेना है 5 को बाहर? कैन यू टेल मी, क्यों लेना है? Why to take 5 common? Yes, which is not replying. Because the formula what we have studied, the standard formula, all those formulas are consist of x² plus a square, x² minus a square minus x². Okay, so to make same as the formula, we are taking 5 common. Now, when we take 5 common, okay, so ऐसे हम बोल रहे हैं 5 common, बट एक्चुअली वो क्या कॉमन होगा, बिकॉज इट इज इन रूट, तो अंदर तो दिखेगा 5 कॉमन, यानी अंदर आपको कैसा इफेक्ट आएगा, दिस विल बिकम x² एंड दिस विल बिकम 3/5, राइट? बट बाहर जो आएगा वो √5 आएगा. आई होप एवरीवन अंडरस्टूड दिस. एंड नाउ आई थिंक दिस लुक्स लाइक अ फॉर्मूला. जस्ट मुझे a² को एडजस्ट करना है. ये तो x² है ही. इस 3/5 को मैं लिख सकता हूँ √3/√5 the whole square. Yes, everyone. And what was the formula of root of x² plus a²? आपको याद होना चाहिए, आपके रेफरेंस के लिए मैं यहाँ पर देता हूँ. रूट ऑफ x² plus a², if you all remember, it is x/2 question plus a²/2 log of mod of x plus रूट ऑफ x² plus a². ठीक है, ये आपको याद रखना है बच्चों. इंटीग्रेशन ऑफ x² plus a² ये होता है. ठीक है, अभी ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. √5 तो बाहर है, तो एज इट इज रहेगा. नाउ फर्स्ट इज x/2, x इज x, सो x/2 इनटू क्वेश्चन. क्वेश्चन मतलब ये पूरा x² प्लस √3/√5 द होल स्क्वायर प्लस a²/2. a क्या है मेरा? √3/√5. तो a²/2, then log of mod of x plus क्वेश्चन. क्वेश्चन मतलब x² प्लस √3/√5 द होल स्क्वायर. रूट के अंदर प्लस. बस अब इसको अरेंज कर दो अच्छे से. सो इट विल बी √5x/2 इंटू ये हो जाएगा x² प्लस 3/5 प्लस स्क्वायर करेंगे तो 3/5 हो जाएगा, और अपॉन 2 है तो 3/10 हो जाएगा. log of mod of x plus root of x² plus 3/5 प्लस c. सबको समझ में आ रहा है बच्चों? तो बस यही. अब आगे तो कुछ सॉल्व करने जैसा है नहीं. I can just leave it here and this will be your final answer. So simple था.
बस फॉर्मूला अप्लाई करना था। चलो सब लोग कंप्लीट करो इसको and write done once it is done. Okay, I think many of you have done it already. So moving ahead, next question, fifth one. I is equal to integration of x square into root of a square minus x raised to 6. You tell me what should I do? It is very clear. You can easily tell me what should I do. Come on fast. 10 seconds more. Yes, sir, we can write x raised to what formula? किधर formula applicable है? अरे x स्क्वायर टर्म है ना, इसमें फॉर्मूला होगा, इसमें क्या करेंगे? वो तो मल्टीप्लिकेशन है। क्या चेंज करके फॉर्मूला अप्लाई होगा? नहीं होगा, बिकॉज फॉर्मूला के रूट है, ये टर्म को क्या करोगे? दिस विल रिमेन एज इट इज। So x raised to 6 can be written as x raised to 3 the whole square, right? This problem is disturbing me. So what I'll do, I'll put x raised to 3 को t, because x raised to 3 के डेरिवेटिव में x स्क्वायर आता है ना, तो वह x स्क्वायर dx एडजस्ट हो जाएगा, तो जो प्रॉब्लम वाला टर्म था वो निकल जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, देखो x रेज टू 3 को t पुट किया, फिर डिफरेंशिएट किया, 3x स्क्वायर dx इक्वल टू dt। तो इधर से x स्क्वायर dx हम लिख सकते हैं ना, dt बाई 3। सबको समझा? हाँ, अभी इसके अंदर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो ये क्या होगा, देखो ये एक्स स्क्वायर और टी एक्स बिकम्स डी टी बाई 3। तो और रूट के अंदर क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, ठीक है, एंड दिस इज डी टी बाई 3। तो अब ये नहीं लगता फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अपॉन 3 तो कांस्टेंट है, दैट वी कैन टेक इट आउटसाइड, करेक्ट? So now I need to just arrange and then apply the formula. Okay, so let us apply the formula. Integration of p square minus x square, this is considered as variable, so that will be x by 2, so it will be p by 2 root of question, ठीक है, then plus a square by 2, तो a यहाँ पर a ही है, a square by 2 into sin inverse x by a, तो t by a plus, so this is your answer. Maximum I can take 2 common, so it will be 1 by 6। t के जगह बैक सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो इधर एक्स क्यूब आएगा, इधर ए स्क्वायर माइनस एक्स रेज टू 6 आएगा, प्लस ए स्क्वायर बाई 2, sorry not by 2 because by 2 already taken common, so it will be a square into sin inverse x cube by a प्लस ये आपका फाइनल आंसर। समझा सबको?
जो लास्ट क्वेश्चन में मैंने वो कांस्टेंट को बाहर रखा था कि मैंने मल्टीप्लाई कर दिया था। हाँ हियर सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने थोड़ा मिस्टेक कर दिया। ये रूट 5 तो सबके बाहर है ना, तो इट शुड बी लाइक दिस, करेक्ट? ये ऐसा होना चाहिए। आप लोगों ने भी किसी ने कुछ बोला नहीं, रूट 5 तो सबके बाहर होगा ना, एंड देन अपॉन 2 आई कैन टेक कॉमन। तो आई थिंक थोड़ा सा चेंजेस होगा आंसर के अंदर। रूट 5/2 ऐसे बाहर होगा, इसमें x होगा, x इंटू दिस, राइट? ये पार्ट रफ करके करता हूँ। रूट 5/2 टेकन कॉमन, इधर x बचेगा एंड इधर भी अपॉन 2 गया तो फिर 3/5 ही बचेगा। सबको समझ में आया क्या मिस्टेक हो गया था? सो मेक दैट करेक्शन और ये क्वेश्चन कंप्लीट करो। करेक्शन इज ओनली विद दिस रूट 5 आर्टर। कर लो, चलो सब लोग। Let me know students if it is completed. I think it is done now. Moving ahead to the next question. Question number 6. Now you can see in question number 6, बच्चों, you have root के अंदर 2 linear terms, right? कैसे करेंगे? Can you tell me? थोड़ा मुझे आप बता सकते हो? क्योंकि बस 1 था तो हम ऐसे करते ही थे ना। अब ये 1 नहीं है, इसलिए फॉर्मूला भी दूसरा है। But you can tell me what should I do? So definitely it is going to be a quadratic equation that we multiply. तो क्वाड्रेटिक को एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में तो कन्वर्ट करने आता है ना हमको, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाला करके। याद आ रहा है आपको? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं, सॉरी, हाफ इनटू कोएफिशिएंट का होल स्क्वायर ऐड करते थे एंड सो ऑन। तो वैसा हमको ये मेथड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इट बिकम्स, एक्स का मल्टीप्लाई करो, 7x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 21 प्लस 3x।
Okay. Now arrange the terms. So you can see um, minus x square, 7 plus 3, 10x, and minus 21. Okay. And then we find out हाफ. पहले तो हम एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 करते हैं, नेगेटिव ध्यान नहीं देते, कोई नंबर है तो वो देखते हैं, राइट. अगर माइनस कॉमन लेना है तो माइनस हम बाहर नहीं ले सकते रूट के, तो उसका मैंने एक लॉजिक बताया था आपको. माइनस अगर एक्स स्क्वायर नेगेटिव होगा तो एक्स स्क्वायर और एक्स के साथ फिर उस टर्म को क्या करने का, सब्ट्रैक्ट करने का, और कांस्टेंट के साथ ऐड करने का, राइट. हाँ. तो पहले मैंने हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स फाइंड आउट करना है. So that will be half into 10 square. So it will be 5 square. So it will be 25. So this will become what now? Integration of. ध्यान से देखो. Normally constant हम पहले लिखेंगे थे. Constant के अंदर हम ऐड करेंगे. तो ये constant के अंदर ऐड हो गया. और बाकी सब के अंदर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10x से मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा. सबको समझ में आया ये स्टेप? नाउ the first term is constant, so if I subtract it, I will get 4 here, plus 4 as 25 is a greater number. Here I can take minus common, so it becomes x square minus 10x plus 25 dx, which will further become square of some term. So that will be 4 can be written as 2 ka square, and this can be written as x minus 5 ka whole square. Have you all understood this? How did I convert it into a formula? Yes. And now you will apply a square minus x square ka formula here. So that is x by 2. So now here x is x minus 5. So be careful while applying the formula. X by 2 root of question. Question matlab same. Plus a square by 2. So a is 2, so 2 square by 2 into sine inverse of x by a. X is x minus 5, a is 2 plus c. ठीक है. अभी देखो बच्चों, यहाँ पर ये आया है, राइट. अभी मुझे बताओ 2 स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर ही तो ये था ना, और यही ये था, और यही ये था. दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस. सो ये जो हमको फाइनली ये आया है 2 स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 5 द होल स्क्वायर, दिस इज नथिंग बट द यू नो सॉल्विंग. ये जो x माइनस 3 7 माइनस एक्स आया वही है ना, कुछ हमने कॉमन तो लिया नहीं. हाँ, अगर कुछ कांस्टेंट कॉमन आता तो बात अलग होती. तो मैं क्या कर सकता हूँ, आई कैन सिंपली रिप्लेस दिस बाय द क्वेश्चन ना. देख जिसका वो एकदम, जिसका ये सोल्यूशन है. सो दैट इज x माइनस 3, x माइनस सॉरी 7 माइनस एक्स. सिंस नथिंग वाज कॉमन, हम लोग ने पूरा एज इट इज लिख दिया. नहीं तो बीच के किधर स्टेप से लेना पड़ता है. 2 स्क्वायर बाई 4, तो इट विल बी 2 साइन इनवर्स. आई होप सबको समझ में आ गया होगा. कम ऑन, चलो कंप्लीट करो जल्दी से, फास्ट कंप्लीट इट.
ओके, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कैसे करना है। तो अब जितने भी रूट के अंदर अगर क्वाड्रेटिक आएगा, ठीक है, उसमें हम उसको कन्वर्ट करके सॉल्व करके इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अभी कुछ जो क्वेश्चंस होंगे वो इसी टाइप के क्वेश्चन है। सो आई विल explain them, give you hint so that you can solve it further. Next question है 4 raised to x into 4 raised to x plus 4. ठीक है, now what can we do? So you can see here that 4 raised to x है और plus 4 है। ठीक है, तो इस 4 raised to x और ये पूरा रूट के अंदर है, रूट तो मैंने लिखा है जस्ट। तो पहले ये रूट तो दोनों को जाएगा, ठीक है, तो ये रूट 4x रेज टू x को भी जाएगा और ये रूट 4 रेज टू x प्लस 4 को भी जाएगा। नाउ डोंट यू थिंक ये जो 4 रेज टू x है इसको मैं 2 रेज टू x का स्क्वायर लिख सकता हूँ। हेलो, 2 रेज टू x का स्क्वायर, करेक्ट। Now what will happen to this term? Since it is a single term and 2 raised to x का square है, the square and root will get cancelled. So I will be simply getting 2 raised to x and here 2 raised to x the whole square plus 4. And now this gives us hint that I can put 2 raised to x as t, correct? So that when I differentiate this, the derivative of 2 raised to x is 2 raised to x log 2 dx is dt. log 2 काम का नहीं है तो उसको उधर भेज दिया। 2 रेज टू एक्स डी टी हो जाएगा, dx हो जाएगा dt अपॉन log 2। तो देखो ये 2 रेज टू एक्स है, ये dx से ये रिप्लेस हो जाएगा इस वाले टर्म से। सो आई थिंक ये जो रूट के बाहर प्रॉब्लम वाला टर्म था वो सॉल्व हो जाएगा। तो ध्यान से देखेंगे, ये t हो गया तो ये हो गया t स्क्वायर प्लस 4, 4 को 2 का स्क्वायर लिखा और dx और 2 रेज टू x को मिक्स करके dt upon log 2। log 2 anyways it is a constant, is not going to disturb us। तो ये x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया ना बच्चों, तो 1 अपॉन log 2 बाहर रख दिया और अब इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, करेक्ट। देखो अभी फॉर्मूला एप्लीकेबल कैसे है। x by 2 तो t by 2 रूट ऑफ क्वेश्चन प्लस a स्क्वायर by 2 into log of mod of a square x square plus a square, sorry x plus x is t plus x square plus a square। फॉर्मूला तो आपको याद होगा बच्चों, ठीक है, इतना मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ, करेक्ट। तो दिस इज सेम, अब बस t के जगह 2 रेज टू x पुट कर देंगे, सो इट विल बी 2 रेज टू x by 2। ये 2 रेज टू x का स्क्वायर मतलब 4 रेज टू x हो जाएगा ना, 4 raised to x plus 4, this becomes 2 log of, sir a square is 2 raised to 2, हाँ ये 2 raised to 2, ठीक है। so this is 2 raised to x plus 4 raised to x plus 4, this is your final answer। So I think you all are understanding now, this is easy type of question। Please complete this।
Done. Okay. Now students, after this question 8th 9th और 10th 8th और 9th डिफरेंट है. रीजन इज रूट्स तो है बट उसके पहले कोई एक्स्ट्रा टर्म भी है. तो आपको याद होगा मैंने टाइप कराया था लीनियर इनटू रूट क्वाड्रेटिक. डू यू रिमेंबर? सो वो 9th और 10th तो वैसे रहेंगे बट 11th एंड 12th देखो वो तो इसके जैसे ही है. तो उसका मैं पहले हिंट दे देता हूँ आपको. I इज इक्वल टू 11th वन है sec square x into root of tan square x plus tan x minus 7. ठीक है. Now you can simply see here कि अगर tan x को t पुट करूं और फिर डेरिवेटिव करूंगा तो sec square x dx will become dt. तो देखो मेरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा. sec square dx तो dt हो गया तो अंदर हो जाएगा t स्क्वायर प्लस t माइनस 7 dt. तो बच्चों अब इसको तो सॉल्व कर सकते हो ना आप. हाफ इंटू कोएफिशिएंट करके इसको कन्वर्ट करोगे. हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ होल x का होल स्क्वायर ऐड सब्ट्रैक्ट करके इसको x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर में कन्वर्ट कर लोगे एंड देन यू विल अप्लाई द फॉर्मूला. करेक्ट बच्चों? सो दिस इज होमवर्क. इवन 12th प्रॉब्लम. 12th प्रॉब्लम क्या है? उसमें तो डायरेक्टली क्वाड्रेटिक ही दिया 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4. बस इसमें पहला स्टेप इंपॉर्टेंट है कि 2 कॉमन लेना है और बाद में हाफ इंटू कोएफिशिएंट वाला स्टेप करना है. राइट. तो 2 कॉमन लूंगा तो बाहर √2 आ जाएगा. x स्क्वायर प्लस 3/2x प्लस 2. हाँ पहले टर्म में 2 कॉमन था लास्ट टर्म में 2 कॉमन था बीच में नहीं था इसलिए डिवाइड बाई 2 किया dx. समझा सबको? So this also you can do it as homework. Okay. So this question must be done as homework. Now the two questions जो different है, क्यों different है वो भी आपको समझ में आना चाहिए. Okay, 9th one, sorry 8th one. See you have x plus 1 and root of this. अभी तक भी ऐसे टर्म आए हैं कि रूट के बाहर कुछ रहेगा बट फिर कुछ सब्स्टिट्यूट करके डेरिवेटिव करके वो कुछ एडजस्ट हो जाता था. नहीं. यहाँ पर देखो मैं क्या सब्स्टिट्यूट करूंगी x plus 1 एडजस्ट होगा. It cannot be done. So this is the type. अगर हमको याद हो तो मैंने स्टार्ट में करवाया था इंटीग्रेशन ऑफ लीनियर. उसमें मैंने ऐसा px प्लस क्यू लिखा था. ये एक्सरसाइज के स्टार्ट में मैंने जब सारे रूल दिए थे. याद आ रहा है आप लोगों को? ये टाइप. इस टाइप में हमको क्या करना है. तो जो लीनियर वाला टर्म है उसको हमको एक्सप्रेस करना है a इंटू डेरिवेटिव ऑफ द क्वाड्रेटिक प्लस b. करेक्ट. तो ये वाला रूल हमको करना है. तो यहाँ पर भी हम ऐसा ही कुछ करेंगे. सो आई विल से कंसीडर जो x प्लस 1 है उसको हम लिखेंगे a इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक 2x स्क्वायर प्लस 3 प्लस b. तो डेरिवेटिव स्टेप लिखेंगे. इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 4x. राइट. 3 का डेरिवेटिव 0. जैसी डेरिवेटिव आ गया हम सबको मालूम है इस वाले स्टेप को 1 लिख देते हैं क्योंकि यही हम यहाँ पर पुट करेंगे. नाउ टू गेट a एंड b हमको सॉल्व करना पड़ेगा. सो लाइक दिस बिकम्स 4ax plus b is x plus 1. Now I can compare the coefficients, right? Comparing both sides. x का कोएफिशिएंट 4a तो 4a इक्वल टू x का कोएफिशिएंट 1. इधर बचा b और इधर बचा 1. So I think it's very easy that you can tell me the value of a as 1/4
and b as 1. Correct, bachcho? Now therefore I can say equation 1 becomes what? X plus 1 is equal to 4axn. सॉरी यहाँ पर 1 में a इंटू 4x. a क्या है 1/4 इंटू 4x. नाउ डोंट कैंसल दिस 4. ये तो एडजस्टमेंट करने के लिए हमने ऐसा किया, तो ये कुछ कैंसिल मत करो. प्लस b. तो ये आपका x plus 1 is written as a into derivative of quadratic plus b. उसको उसी फॉर्म में रहने दो. उसका क्या फायदा होगा अभी आगे स्टेप में मैं बताऊं. आई होप एवरीबडी हैव अंडरस्टूड टिल हियर. अब मैं x plus 1 की जगह वो सब्स्टिट्यूट करूंगा. So therefore I will be equal to x plus 1 की जगह I am writing 1/4 4x plus 1 into root of the term that was 2x square plus 3 as it is dx. करेक्ट. अब इस 2x स्क्वायर प्लस 3 को मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा. ठीक है. सो व्हेन आई मल्टीप्लाई टू द फर्स्ट टर्म, उसमें 1/4 कांस्टेंट है, उसको मैंने बाहर लिखा. 4x इंटू 2x स्क्वायर प्लस 3 बचा. सबको समझा फर्स्ट टर्म. डोंट कैंसिल 4. आई एम अगेन एंड अगेन टेलिंग यू. क्यों? क्योंकि देखो मैं बाद में इसको t पुट करने वाला था. इसका डेरिवेटिव है ना ये. 4 कैंसिल करोगे तो फिर 4 को एडजस्ट करना पड़ेगा अपने को. यू अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट. प्लस 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो ऐसा ही रहेगा. नाउ स्टूडेंट you can see that this I can solve by normal method जैसा हमने अभी तक पहले किया, and this I can solve by substitution method. So what I will do, I will assume this is like ये 1/4 ये वाला इंटीग्रेशन I1 है और ये वाला इंटीग्रेशन I2 है. ठीक है. and now I will solve them one by one. Consider I1 तो वो है इंटीग्रेशन ऑफ 4x रूट ऑफ 2x square plus 3 dx. Now I'll simply put रूट के अंदर जो पूरा टर्म है उसको t, क्योंकि इसी का तो डेरिवेटिव एडजस्ट किया है, तो डिफरेंशिएट करोगे तो 4x dx इक्वल टू dt आ जाएगा. तो आपका जो क्वेश्चन हो गया I1 वो क्या हो गया 4x dx dt अंदर रूट t. ये तो सिंपल हो गया ना बच्चों. रूट t मतलब t रेज टू हाफ, और t रेज टू हाफ का इंटीग्रेशन होगा t रेज टू 3/2 अपॉन 3/2 प्लस 3/2 ऊपर गया तो 2/3. t की जगह वापस सब्स्टिट्यूट कर दिया तो ये आपका I1 हो गया बच्चों. सबको समझा I1. सबको समझा I1 कैसे किया हम लोग ने. Now I2 I can give it to you as homework, right? 2x square plus 3. I2 को कंसीडर करेंगे अभी. इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 3, राइट. पहले 2 कॉमन, रूट x से रूट 2 हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर x स्क्वायर प्लस 3/2 हो जाएगा. उस 3/2 को भी स्क्वायर लिखना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस √3/√2 का स्क्वायर. नाउ यू कैन अप्लाई द फॉर्मूला एंड यू कैन गेट द इंटीग्रेशन, राइट. और बाद में हमको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना है. बस I1 में ध्यान देना
कि 1/4 है, तो ये 2/3 इंटू 1/4 होगा, तो आई थिंक 2 2 ज़ा 4, तो 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा, तो 1/6 हो जाएगा, राइट बच्चों? Further you can solve and substitute that in this step. This you can call it as A, इसके अंदर substitute कर सकते हैं. Understood? कैसे करना है इस प्रॉब्लम को सॉल्व? स्टार्ट का अगर कुछ लिखना है तो यू कैन जस्ट मेक अ नोट ऑफ दिस. स्टार्टिंग वाला पार्ट ही डिफरेंट है. प्लीज लेट मी नो अगर जहाँ तक मैंने हिट दिया था हो गया था. ओके, आई थिंक सब लोग साथ में लिख रहे थे, इसके लिए डन बोल रहे थे. गुड. Now there is one more question of this type. I think that question I can leave it to you because it is exactly of the same type. Linear into quadratic. I'll just write down the question, ninth one. X into root of 5 minus 4x minus x square. Linear into quadratic. Can you see that? चलो इसको सॉल्व करते हैं. आप लोग स्टार्ट करो. Since did you identified that it is a linear into quadratic, you will express the linear as a into derivative of quadratic plus b. So this will be a into minus 4 minus 2x. This is its derivative, correct? Plus b. So derivative वाले step को हम number 1 दे देते हैं. Now further to get a and b, I will have to multiply. So minus 4a minus 2ax plus b. x वाला टर्म है minus 2ax, कांस्टेंट वाला टर्म को साथ में ले लो minus 4a plus b. This is x. Now comparing both sides, what will you get? X का कोएफिशिएंट है minus 2a, तो minus 2a is x का कोएफिशिएंट 1. दूसरा कांस्टेंट है minus 4a plus b. लेफ्ट में कोई कांस्टेंट ही नहीं है, तो इट इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से आपको मिल गया a का वैल्यू 1/-2, मतलब -1/2. इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करो -1/2 को, तो b मिल जाएगा. तो -4 into -1/2 प्लस b इज 0. माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 2 ज़ा 4, तो 2 प्लस b इज 0. सो b का वैल्यू यू गॉट इट एज -2. सबको समझ में आया? So therefore equation 1 becomes what? X is equal to a -1/2 into -4 minus 2x plus b, बट यहाँ पर -2 है इसलिए -2 हो जाएगा. एंड therefore now अब हमारा जो क्वेश्चन है उसके अंदर मैं x को ऐसे लिख दूंगा. x के जगह मैं लिखूंगा -1/2 -4 minus 2x -2. ये मेरा x है, और फिर रूट के अंदर जो क्वाड्रेटिक था वो तो ऐसे ही रहेगा, 5 minus 4x minus x square. सेम वे विल मल्टीप्लाई इनसाइड. देखो ये क्या होगा, -1/2 कांस्टेंट है उसको बाहर लिखा, -4 minus 2x
into root of 5 minus 4x minus x स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा -2 इंटू दिस, तो -2 बाहर। सबको समझ में आया यहाँ तक? अब इसको हम सॉल्व करेंगे अलग से I1 लेके, करेक्ट। इसको हम सॉल्व करेंगे I2 लेकर। अभी I1 तो सिंपल है ना, इसको हम सब्स्टिट्यूशन करने वाले हैं इस ब्रैकेट को, और इसको नॉर्मल वाले मेथड से, रूट वाले फॉर्मूले से ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसा हमने लास्ट में। ठीक है, सो यू ऑल कैन जस्ट नोट डाउन दिस क्वेश्चन अप टू हियर and then you can complete this. So like this we have completed question number 2 now of this exercise. Now only question number 3 will be left, and around 9 problems are there. And only the last step, last method is left. e raised to x plus fx plus f dash x का एक रूल मैंने बताया था, वो, तो उसके ऊपर ही क्वेश्चन नंबर 3, so that we will be doing in the next class. ये पहले आप लोग सब नोट कर लो, सब ये वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया है। Let me know students if it is completed. ये वाले स्टेप के बाद तो आपको समझ में आएगा, इसको हमको सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से, इसको हमको रूट ऑफ नॉर्मल सॉल्व करना है। Okay, I hope it is done. So all of you complete this, और ये क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन everyone have to send on WhatsApp group. Okay? ये पूरा कंप्लीट फाइनल आंसर को सॉल्व करके आपको ग्रुप में भेजना है। हाँ, अभी का अभी आप कंटिन्यू करो और इसको सॉल्व करो, ठीक है। That's all for today students. Thank you very much. See you next time. Bye bye.